Hello dear students. Today in this video we are going to discuss our topic, that is electromagnetic induction, and we have seen one lecture on electromagnetic induction. In that first lecture we had studied so many things like what is Faraday law, what are Faraday laws. Second was experiment performed by Faraday law. Experiment performed by Faraday. After that, we have seen Lenz law. It gives the direction of induced EMF and it is based on law of conservation of energy. After that, we have seen motional EMF also. Motional EMF. And we got the expression as BLV. This was the expression which we got with the help of motional EMF. So today we are going to study further the electromagnetic induction. So our next topic is methods of generating induced EMF. So here we have three methods of for inducing EMF. As we all know that the formula for magnetic flux is NBA cos phi. And if we see this formula, E is equal to minus d phi b by dt. ऐसा ही फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में. So in place of phi b, what we can write? We can write NBA cos phi. So for generating induced EMF, what we have to do is we can change the area of the coil, we can change the magnetic field, and we can change the orientation between magnetic field and cross sectional area. मतलब B और एरिया वेक्टर के बीच में हम क्या काम कर सकते हैं? एंगल चेंज करा सकते हैं. तो अगर हम यहाँ पर एरिया चेंज की बात करें तो वो चीज हम ऑलरेडी अपनी लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, जो कि हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ देखा था. मोशनल ईएमएफ में हम लोगों ने क्या काम किया था? वी वर हैविंग द मैग्नेटिक फील्ड, एंड in this magnetic field what we have to do is we have to move a conductor with the help of rails, two static rails. In that two static rail, what we have done is we have changed the area due to the movement of this conductor, like in this manner. This was a conductor and we have given the velocity to this conductor, and what we found was the length is L and breadth is B initially, but after some time its breadth gets changed. After time delta t, it moves a certain distance, and what was that distance? That distance was delta b, and due to this change the area becomes LB minus delta b. Initial area was L into B, and finally the area becomes LB minus delta b. So first point we have already seen in the previous video. The second is by changing the magnetic field. By changing the magnetic field, we have already seen it in the Faraday experiments. वहां पर हम लोगों ने क्या किया था Faraday experiments में? Faraday experiments में हम लोगों ने, याद होगा आप लोगों को, हमने एक कॉइल ली थी. इस कॉइल के साथ हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया था. इस गैल्वेनोमीटर के जस्ट सामने हम लोगों ने एक मैग्नेट रखी थी. इस मैग्नेट को हम टू एंड फ्रो मूव करा रहे थे. तो इस टू एंड फ्रो मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा था? मैग्नेटिक फील्ड को हम वेरिएबल बना रहे थे. तो ये चीज हम लोगों ने कॉइल को भी मूव कराकर देखा था कि अगर मान लीजिए ये हमारी कॉइल है, इस कॉइल को भी हम लोगों ने मूव करा के देखा था टू एंड फ्रो, और मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट को हम लोगों ने स्टैटिक रखा था. तो इन दैट केस आल्सो देयर वाज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड.
उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या काम किया था, दोनों को साइमल्टेनियसली मूव कराया था, और मूव कराने पर हमें क्या देखने को मिल रहा था, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही थी, और उसी चेंज की वजह से वी गॉट द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर व्हिच प्रूव्स दैट ईएमएफ has been generated in those cases. Here also BLB was the initial area, and finally the area was this, and we got the induced EMF as BLV. We have also seen how to find the direction of induced current, and to find the direction of induced current we have to use the right hand Fleming right hand rule. What we have to do is we have to keep the three thumb, index finger and central finger in mutually perpendicular direction. Then the thumb must be placed in the direction in which the velocity is provided. Your index finger must be in the direction of the magnetic field. Then the central finger gives the direction of induced current. These things we have already seen in the previous video. There is one more method to generate the induced EMF, and that method is by changing the relative orientation theta between the magnetic field and cross-sectional area. So we are going to see this method, how we can generate induced EMF by changing the relative orientation between the magnetic field and cross-sectional area. In this case, what we have to do is we have taken a magnetic field. Suppose this is North Pole and this is South Pole. What I'm going to do is I'm going to place a rectangular coil. I'm going to place a rectangular coil. So this is a rectangular coil. I amount current is not flowing in this because we have just placed it. What we are going to do is by some mechanism, we are going to rotate it. So by some mechanism, if I'll rotate the magnetic this rectangular loop, तो क्या होगा, हर बार ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ. ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब ये कॉइल रोटेट करेगी, मैग्नेटिक इसकी एक्सिस जो है, एक्सिस ऑफ द कॉइल, हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, एक्सिस ऑफ द कॉइल is perpendicular to magnetic field. B के साथ ये perpendicular है. तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसको रोटेट करेंगे यहां पर, तो B के साथ इसका एंगल चेंज हो रहा होगा. तो अगर मैं यहां पर इसका एरिया वेक्टर बनाने की कोशिश करूंगा, तो दिस विल बी द एरिया वेक्टर, ए वेक्टर. और ये हमें क्या प्रोवाइडेड है, B. इनके बीच में जो एंगल है, वो एंगल मैंने मान लिया थीटा है. तो सिंपल सी बात, what we are going to do is here phi will be equal to, suppose there are n number of turns. कितने number of turns है बेटा, n number of turns. जो भी हमारी coil है, उस coil के पास है n number of turns. अगर n number of turns है, तो obvious सी बात है, phi b will be equal to nba cos theta. And if I am rotating it, there must be some angular velocity, that is omega. So suppose in time t, if the coil is rotated, then with coil is rotated with angular velocity omega, then theta will be equal to omega t. और थीटा की वैल्यू अगर ओमेगा टी के बराबर हो गई, तो फाई बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ऐसे ही लिख पाएंगे हम. तो ये मेरे पास फ्लक्स आ गया. अब इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हमें क्या काम करना होता है, फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू यूज द फॉर्मूला E is equal to minus d phi b by dt. तो E is equal to minus of d by dt of, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, NBA
cos ओमेगा t लिख सकता हूं। तो E विल बी इक्वल टू NBA तो आ गया बेटा कॉमन। डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, कॉस का, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। सो E विल बी इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। This will be the expression for induced EMF. तो सिंपल सी बात, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन मिल गया, और इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन मिलने के बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब ओमेगा टी की वैल्यू कितनी हो जाए बेटा, π/2 हो जाए। और जैसे ही ओमेगा टी की वैल्यू π/2 हो गई, मुझे ई मैक्स मिलेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर ये पीक वैल्यू है हमारे इंड्यूस्ड ईएमएफ की, वो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, NBA ओमेगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी तो 1 हो जाएगा। तो दिस विल बी द पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो वी हैव सीन दैट इफ आई चेंज द एंगल with the magnetic field by the rotation of the rectangular coil or any type of coil, then there will be an induced EMF, and the expression for induced EMF is E is equal to NBA omega sin omega t। इसको पीक वैल्यू को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं E नॉट से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, E नॉट। तो सिंपल सी बात, अगर मैंने इसको E नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया तो मैं E इज इक्वल टू क्या लिख पाऊंगा, E नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब ये कि ये हर एक इंस्टेंट पर मेरा ईएमएफ चेंज हो रहा होगा, क्योंकि जब आप इसको ओमेगा से रोटेट करेंगे तो हर पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इसका एंगल चेंज हो रहा होगा, और जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा होगा वैसे वैसे आपको डिफरेंट ईएमएफ मिल रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हमें डिफरेंट ईएमएफ मिलेगा। तो यहां पर ये सेम वही आपका डेरिवेशन है बेटा। ये देखो, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर इसने इस तरीके से इसको रोटेट कराया है। दिस इज द एंगल थीटा, एंड फाई इज इक्वल टू NBA cos थीटा एट टाइम t विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। थीटा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। तो फाई की वैल्यू हो गई आपकी NBA cos ओमेगा टी। So by differentiating it, d phi by dt is equal to minus of NBA omega sin omega t. So E will be equal to NBA omega sin omega t, which is E is equal to E naught sin omega t. तो बिल्कुल सेम जो डेरिवेशन मैंने यहाँ पर आपको बिल्कुल हाथ से करके दिखाया, यहाँ पर वही सारी की सारी चीजें आपकी लिखी हुई हैं बेटा। और डायग्राम भी यहाँ पर शायद आपको प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं इतना परफेक्ट डायग्राम नहीं बना पाया हूँगा शायद। तो यहाँ पर आपको डायग्राम भी समझ में आ रहा होगा कि वो किस तरीके से उसको रोटेट किया गया है। तो किस तरीके से ईएमएफ चेंज होगा उसकी अगर हम बात करें, तो दिस विल बी दी मेथड ऑफ चेंजिंग ईएमएफ। जैसे इनिशियली अगर हम देखें तो इसका जो भी एरिया वेक्टर होगा, जब ये बिल्कुल इसकी जो एरिया है वो बिल्कुल मैग्नेटिक इस नॉर्थ पोल के ही एक्सिस पर रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड और उसके बीच में आपको जो एंगल मिलेगा दैट एंगल विल बी 0 डिग्री। और अगर 0 डिग्री मिलेगा मतलब यहाँ पर ईएमएफ 0 हो गया। जब ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इसके एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये एंगल आपको 90 डिग्री मिलेगा। यहाँ पर ये वैल्यू मतलब पीक वैल्यू मिल जाएगी आपको 90 डिग्री में। फिर से ये रोटेट होकर इसी पोजीशन में आएगा जैसी पहली पोजीशन में था, तो यहाँ पर आपको वैल्यू 0 मिलेगी। फिर यहाँ पर आपको नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल होगा वो एंगल आपका 180 से ज्यादा एंगल हो जाएगा, मतलब 270 डिग्री हो जाएगा। तो 270 डिग्री साइन 270 की वैल्यू होती है -1। तो अगर ये वैल्यू आपकी -1 हो गई तो ऑब्वियसली बात है आपको नेगेटिव पीक वैल्यू मिलेगी, और वो कितनी मिलेगी, माइनस ऑफ ई नॉट। और फिर 2 पाई पर पहुंचकर ये वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। मैथ्स वाले स्टूडेंट इस साइन कर्व को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि E इज इक्वल टू एक्सप्रेशन क्या मिला है हमें, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो साइन का जो ग्राफ हुआ करता है, साइन का ग्राफ सभी लोगों को ध्यान रखना है बेटा, इस तरीके से होता है। अगर यही कॉस होता तो कॉस के केस में आपका ग्राफ कैसा होता, कॉस के केस में ग्राफ ये होता है। दिस इज, अगर मान लो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आता
cos ओमेगा टी, तो उस केस में आपका ग्राफ इस तरीके से बनता, और E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। तो आपको क्लियरली चीजें दिख रही हैं कि जब एंगल 0 डिग्री है, किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जब 0 डिग्री एंगल है तो ईएमएफ आपको 0 मिल रहा है। जब यही चीज आपकी मैक्सिमम हो गई तो वहां पर आपको यही चीज पाई बाई 2 पर मैक्सिमम मिल रही है, फिर पाई पर 0, फिर 270 पर नेगेटिव, और फिर 2 पाई पर फिर से 0। मतलब ये एक साइकिल हो गई हमारे किसकी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की, और यही साइकिल हमारी बार बार क्या होती चली जाएगी बेटा, रिपीट होते चली जाएगी। सो आई होप ये आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाउ वी कैन जनरेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ by changing the orientation of the coil in the magnetic field. Rest things we'll see in our next video. Till then, God bless you all.